پڑھانا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، تو پھر وہ کوئی ڈاکٹر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور فلاں ڈاکٹر جیسا ڈاکٹر بنے، فلاں بڑا اعلیٰ ڈاکٹر ہے نا، بڑا عمدہ ڈاکٹر ہے، اس جیسا ڈاکٹر بناؤں گا۔ تو آپ نے اپنے بچے کے لیے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن کسی کو نمونہ ذہن میں رکھا ہے، کسی کو ماڈل بنایا ہے، کسی کو رول ماڈل بنایا ہے، کسی کو آئیڈیل بنایا ہے کہ فلاں جیسا ڈاکٹر بننا چاہیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، تو اس کے ذہن میں کوئی اچھا انجینئر ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا اور فلاں انجینئر جیسا انجینئر بناؤں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر بنے اور اس کے ذہن میں کوئی اچھا پروفیسر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر بنے اور فلاں پروفیسر جیسا پروفیسر بنے۔ تو آپ کسی کو نمونہ بناتے ہیں، کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں، کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے نا، ہمیں کہتا ہے لوگوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے کے لیے کسی کو ماڈل بناتے ہو، کسی کو نمونہ بناتے ہو۔ تم مومن ہو، ایمان لاتے ہو، تمہارے بچے بھی مومن ہیں، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارا ایمان کس جیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، کچھ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن کچھ کو ابھی نہیں آئی ہے۔ جن کو آ گئی وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کے معاملے میں تم کس کو آئیڈیل بناؤ گے، کس کو دیکھ کر اپنا ایمان اس جیسا بناؤ گے۔ دیکھیں بھائی، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہوں اور کوئی ڈاکٹر میرے ذہن میں ہو کہ فلاں ڈاکٹر جیسا ڈاکٹر بناؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو جائے۔ میں اس ڈاکٹر کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو پتا چلا کہ وہ تو اچھا انسان نہیں ہے، وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تو کسی غریب کی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو پیسے کا پجاری ہے۔ ہو سکتا ہے نا، تو میں نے جس کو نمونہ بنایا وہ بندہ غلط نکل آیا تو ہوگا کیا؟ مجھے افسوس ہوگا کہ یار میں تا چاہتا ہمیں جو میرا بال ہی دے سوان ڈاکٹر بنے، یہ تو آپ ہی چنگا بندہ کہے نہیں کہ ہون میں کیا کراں۔ آپ کو نقصان ہوا، آپ کو افسوس ہوا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے نا کہ بھائی ایک ڈاکٹر تا بنے، میرا خیال ہے فلانے ڈاکٹر سوان ڈاکٹر بنے، لیکن وہ تا چنگا بندہ کہے نہیں، تو ڈاکٹر ہی بنے تے انسان ہی چنگا ہوں۔ اچھا، آپ سے غلطی ہو گئی نا کسی کو نمونہ بنانے میں، تو اس غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ایمان کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اس معاملے میں اگر کوتاہی ہو گئی، اس معاملے میں اگر نقصان ہوا تو یہ خسارہ پورا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ایمان کے معاملے میں ہمیں حکم دیا، دیکھو تمہارا ایمان کسی جیسا ہونا چاہیے۔ مولا کس جیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اب یہ تمہارے اوپر تو چھوڑ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے تمہاری رائے ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے تمہاری رائے غلط ہو جائے۔ اب یہ معاملہ تمہارے اوپر نہیں چھوڑنا کہ تم نے ایمان کس جیسا بنانا ہے۔ تم کسی مولوی کو آئیڈیل بنا لو، تم کسی پیر کو جو نمونہ بنا لو، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک نہ نکلے تو ایمان تو چٹ ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا ایمان کس جیسا ہونا ہے، کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان تم نے لانا ہے اور ایمان تمہارا ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ میں بتاؤں گا۔ کس جیسا؟ قرآن کہتا ہے آمینو کما آمن الناس، لوگو تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے ناس کا ایمان ہے۔ ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، ساری تفسیروں میں جواب ایک ہی ملے گا کہ ناس کون ہیں، جن جیسا ایمان لانا ہے۔ فرمایا ناس سے مراد نبی علیہ السلام کے صحابہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کے نام پر بھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کے نام پر سبحان اللہ کہتے ہیں، کہا تو نہیں پورے بندوں نے۔ ہم اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ہم کسی ایک کے ذکر والے نہیں ہیں، ہم کسی ایک کے ذکر والے نہیں ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایسے تورا کنیکشن تو نال کہہ نہیں نا، میرا بھی کہہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، ہم اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ذکر اولیاء کا ہو تو سبحان اللہ، ذکر اولیاء کا ہو تو سبحان اللہ،
जिक्र सहाबा का हो तो, जिक्र अहले बैत का हो तो, जिक्र नबियों का हो तो, जिक्र रसूलों का हो तो, और जिक्र रसूलों के सरदार का हो। हमें किसी के जिक्र से मसला नहीं है, हम तो सबके जिक्र वाले हैं। और हमारा अकीदा तो ये है, जिसको हमारे नबी से निस्बत हो गई ना, वो हमारे सर का ताज हो। जिसको हमारे नबी से निस्बत हो गई, वो हमारे सरों का ताज हो गया। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है ईमान लाओ, ऐसे ईमान लाना जैसे नास ईमान लाए। नास कौन है? फरमाया जैसे। आयत का तर्जमा ये बनेगा, लोगो तुम ऐसे ईमान ले आओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। आपकी आवाज कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों का पता नहीं मुझसे तारुफ है या नहीं है, ज्यादा आप जानते हैं कि नहीं जानते, मैं एक पढ़ाने वाला बंदा हूँ। ठीक है, मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूँ। मुझे 20 साल हो गए तकरीबन कुरान की तफसीर पढ़ाते हुए और रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ाते हुए। हाँ, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, उर्दू तालीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिग्री बाकी रही नहीं जो मैंने हासिल ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मैंने सारी हासिल की है, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं मुसल्ले पर बैठकर हुजूर की हदीसें पढ़ाया करता हूँ। मैं हुजूर के फरामीन पढ़ाया करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों। कुरान कहता है तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए जैसे नबी के सहाबा का ईमान है। तो सहाबा का ईमान कैसा है? ईमान हमने ऐसा बनाना है जैसे सहाबा का ईमान। तो सहाबा का ईमान कैसा है? मैं आपको बताऊं कि सहाबा का ईमान कैसा है। सहाबा का ईमान ऐसा है कि सहाबा किराम को जब कभी जहां कहीं जैसी भी मुश्किल पेश आ जाती थी ना, तो वो हुजूर की बारगाह में आ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, किबला मुफ्ती साहब। देखो, आपने सुभान अल्लाह लफ्जों पर कहनी है। साउंड सिस्टम ना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन मैं कोशिश करके जोर लगा के बोल सकता हूँ। मैं बोलता रहूंगा तो आपकी आवाज भी कम नहीं होनी चाहिए। आप मेरा साथ देते रहेंगे। और देखें, आपने ये भी बताना है, लोग कहते हैं ए सही डोढ़े आले ए डोढ़े टप्पे ते माहिए ए इनाद को आंदन। बस मैं आपको कुरान और हदीस सुना रहा हूँ, आप साथ साथ बोलते रहें और बताएं कि हमारा असल मिजाज तो कुरान और हदीस वाला है। सुभान अल्लाह। डोड़े टप्पे माइये जो हैं, अगर बिल्कुल मुताबिक हो ना शरीयत मुताहरा के, सना खा मैं कुकौड़ी अकनल दे पर, ठीक है, अशार अच्छे होते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो सुभान अल्लाह। और मुतनाज़ा गुफ्तगू में तो जाना ही नहीं चाहिए। जैसे शाह साहब फरमा रहे थे, उस बहस में पड़ जाऊं तो बात लंबी हो जाएगी, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। मुतनाज़ा गुफ्तगू में आप साथ साथ बोलते रहें और बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ही कुरान वाले हैं, अहले सुन्नत ही हदीस वाले हैं। अल्लाह अकबर। ईमान ऐसे लाना है जैसे नबी के सहाबा लाए। सहाबा का ईमान कैसा है? सहाबा का ईमान ऐसा है कि जब कभी मुश्किल पेश आती तो कहाँ जाते? हुजूर के पास, दरे मुस्तफा पर। ये लफ्ज आपने बोलना है। सहाबा को मुश्किल पेश आती कहाँ जाते? दरे मुस्तफा पर, हुजूर की बारगाह में। आपको बात समझ में नहीं आई? मैं आपको समझाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर के सहाबा को जब कभी मुश्किल पेश आ जाती तो हुजूर की बारगाह में आ जाते। एक सहाबी की आंख निकल आई और आपकी आवाज नहीं निकली। एक सहाबी की आंख निकल आई, वो आंख का डेला हथेली पर रखकर हुजूर की बारगाह में आ गया। कहा हुजूर देखे ना, ये मेरी आंख निकल आई है, मेरा आंख का डेला निकल आया है। फरमाया परेशान क्यों होते हो, घबराते क्यों हो, चाहते क्या हो? हुजूर चाहत और क्या होगी, ये आंख मेरी दोबारा से सही हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया परेशान ना हो, अपना लुआबे दहन, अपने मुंह का पानी, ठीक है, लुआबे दहन उस आंख पर लगा दिया और दोबारा से आंख जो है वो डेला अंदर फिट कर दिया। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई औजार नहीं, कोई आईसीयू नहीं, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं, बस लुआबे दहन लगाया और दोबारा से डेला फिट कर दिया। अल्लाह अकबर। उसकी आंख ठीक हो गई। वक्त गुजर गया। किसी ने पूछा, ए हुजूर के सहाबी बताओ तो सही, आंख जो पूरी निकल आई थी दोबारा जो लगाई तो कोई तो कमी कोताही रह गई होगी, कोई तो नजर में फर्क पड़ा होगा। फरमाने लगे, ए लोगो, हुजूर के लुआब की बरकत ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरी आंख का नूर तो कम हो रहा है, लेकिन जिस पर लुआबे दहने मुस्तफा लगा है ना, उसका नूर सलामत।
उसका नूर सलामत है, वो नूर कम नहीं हो रहा। सहाबा को मुश्किल पेश आ जाते हुजूर की बारगाह में। किसी ने पानी का कुआं जो खोदा ना, पानी का कुआं जो खोदा, पानी खारा निकल आया, पानी जो है वो मीठा ना निकला। हुजूर की बारगाह में आ गए, अर्ज की हुजूर बड़ी मेहनत की, कुआं खोदा लेकिन पानी मीठा नहीं है, खारा निकल आया है, हुजूर क्या करें? फरमाया क्या चाहते हो? कहा हुजूर मेहनत इतनी की है, पानी मीठा निकल आता तो कितनी अच्छी बात होती। फरमाया परेशान ना हो, चलो चलते हैं। चले गए, अपना लुआबे दहन उस कुएं में अता फरमाया, वो जो खारा पानी था वो मीठा हो गया। सुभान अल्लाह। सहाबा को जब कभी जैसी भी मुश्किल पेश आती कहाँ जाते? दरे मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह। बोले दरे मुस्तफा पर। असल जेड़ा पढ़ावन वाला बंदा होंदा ना, वो पढ़ेंदा भी है तो सुनदा भी है नाल नाल। जी बेशक। हाँ, ये आदत होती है ना, पढ़ाते भी हैं और सुनते भी हैं। तो आप जब बोलेंगे ना साथ साथ, तो मुझे इस बात का इदराक रहेगा कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अल्लाह अकबर। भाई सहाबा को जब मुश्किल पेश आ जाती, हुजूर की बारगाह में आ जाते। मैं आपको एक मिसाल और देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत अली, कहे ना सुभान अल्लाह। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी पिंडली में, आपके पाँव में तीर लग गया। पिछले दिनों लोगों ने बड़े शौक से ड्रामा अर्तगरुल देखा है जी। अर्तगरुल ड्रामा बड़े शौक से देखा है और उसमें चलते हुए तीर देखे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये तीर अकेले तीर नहीं होते। जंगों में जब तीर इस्तेमाल होते थे, पहले उन तीरों को जहर में भिगोया जाता था, जहर आलूद किया जाता था, फिर चलाए जाते थे। और जिसमें लगता था तो वो सिर्फ चोट से नहीं मरता था, वो जहर अंदर फैल जाता और बंदा मर जाता। हजरत अली की पिंडली में तीर लग गया। सहाबा ने निकालना चाहा, दर्द इतना था, प्यारे अली हाथ भी ना लगवाते थे। अल्लाह अकबर। सहाबा परेशान हो गए, और सहाबा परेशान होते तो कहाँ जाते? आप नहीं पहुंचे अभी तक। जो बोल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको दरे मुस्तफा की हाजिरी नसीब फरमाए। भाई सहाबा को मुश्किल पेश आती, कहाँ जाते? दरे मुस्तफा पर जाते। आ गए हुजूर की बारगाह में, कहा हुजूर प्यारे अली की पिंडली में तीर लग गया है, जहर फैलता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, वो तो हाथ भी नहीं लगवाते, हुजूर क्या करें? हुजूर ने किसी मौके पर भी ये नहीं फरमाया। वो जो आया था आंख के डेले वाला, उसको भी ये नहीं फरमाया किसी डॉक्टर के पास जा, किसी तबीब के पास जा, किसी हकीम के पास जा, ना, कहा ठीक आया है। वो जो पानी के कुएं को भी ये नहीं कहा कि यार मैं नबी बनकर आया हूं कि तुम्हारे पानी मीठे करने के लिए आया हूं, नहीं, बल्कि जब कभी जिस किसी को जो मुश्किल पेश आती, दरे मुस्तफा पर हाजिर भी होता और उसकी मुश्किल हल भी हो जाती। अर्ज की हुजूर अली की पिंडली में तीर लग गया है, हाथ भी नहीं लगवाते, तीर का जहर जो है उसका फैल रहा है, खून बह रहा है, कुछ करें? नबी इस्लाम ने फरमाया, जुमला सुनकर अगर आपने सुभान अल्लाह कह दिया ना, तो मैं आपके ईमान की गवाही दूंगा। पहले जुमला सुने, अगर आपने इस पर सुभान अल्लाह कहा तो मैं समझूंगा कि यहाँ पर सारे मोमिन बैठे हुए हैं। नबी सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए लोगो, तुम अली के साथ तो रहते हो, लेकिन तुमने अभी अली को पहचाना नहीं। क्या बात है। तुम अली के साथ तो रहते हो, लेकिन तुमने अभी अली को पहचाना नहीं है। सुनो, जब अली नमाज पढ़ रहे हो ना, तो फिर तीर खींच लेना। कहा हुजूर हाथ नहीं लगवाते वो? फरमाया जब नमाज पढ़ रहे हो ना, तो तीर खींच लेना। ऐसा ही हुआ। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जिनका देखना भी इबादत, जिनका देखना भी इबादत, और ये मामला हमारे तक नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए कहा गया हो। हुजूर जंग में एक तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा आ रहे हैं, एक तरफ हजरत अली भी हैं। प्यारे आका अपना चेहरा फेरते और हजरत अली के चेहरे को देखते। मेरा ख्याल थक गए आप लोग ना। डोड़ा सुनावा ऐसे ही कोई टप्पे माइये सुनावा तो मैं ये हदीसे पाक सुना रहा हूँ, इस पर आपकी सुभान अल्लाह फिर ढीली हो गई। एक बार फिर जरा ज़ौक़ का मुज़ाहरा करें। गुफ्तगू मैं आगे कर नहीं सकता, अगर आवाम साथ साथ बोले ना मैं आगे बोल नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, आपको साथ साथ बोलना होगा। प्यारे आका जिनको देखने की तमन्ना अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते करें, जिनको देखने की तमन्ना
प्यारे नबी करें, वो प्यारे आका चेहरा घुमाकर हजरत अली के चेहरे को देखते हैं। वो प्यारे अली के चेहरे को देखते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर चेहरा घुमाकर देखते हैं, फिर ऐसा हुआ कि कोई और आगे बढ़ गया, प्यारे अली जरा पीछे रह गए, मेरे आका ने देखा तो प्यारे अली का चेहरा नजर नहीं आया। आका परेशान हो गए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अलिया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अली का चेहरा ना देख लो, जब तक अली का चेहरा ना देख लो मुझे मौत ना देना। वो प्यारे अली, फरमाया जब प्यारे अली नमाज पढ़ रहे हो तीर खींच लेना। ऐसा ही हुआ, हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे और सहाबा किराम ने वो तीर खींच लिया और हजरत अली को पता भी ना चला, और आपकी सुभान अल्लाह का भी पता नहीं चला, प्यारे अली को पता भी ना चला कि तीर खींच लिया गया। अल्लाह अकबर। जब नमाज खत्म की ना तो पूछा, प्यारे अली पहले तो हाथ भी ना लगवाते थे, अब हमने तीर खींच लिया, आपको पता भी ना चला। सुनो, प्यारे अली ने फरमाया, लोगों जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ ना तो अपने रब का दीदार कर रहा हूं। जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ तो अपने रब का दीदार कर रहा होता हूँ। यारो, वो मिस्र की औरतें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा। विरद पकाओ मौला अली के नाम का, तुम विरद पकाओ, ये विरद पकाता है जो बन जाता वली है, ये विरद पकाता है जो बन जाता वली है, वो मेरा मौला अली, मौला अली, मौला अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे अहले बैत जिंदाबाद। ये सामान का आना ना, ये निशानी होती है कि अब जो है वो ब्रेक लगा दें, लेकिन मैं अभी ब्रेक लगाने वाला नहीं हूँ। अभी 10 मिनट जो है वो मेरी गुफ्तगू, क्योंकि नतीजे तक जब तक पहुँचा नहीं लूँगा बात खत्म होगी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत अली कर्रमल्लाहु करीम, वो मिस्र की और तवज्जो है आपकी, मेरे पास है कि खाने दे पास है, तुम्हारे पास है, मेरे पास तवज्जो मेरे पास रखी है, तुम्हारे वास्ते तो सही खाने, मैं तो वही जल्दी है, मैंने तो जल्दी पहुँचना है कहीं पर, तो आप लोगों ने खाना, लेकिन तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। भाई मिस्र की औरतें हुस्न यूसुफ को देखें तो हाथ कटने का पता ना चले, और जो रब का दीदार कर रहा हो, जो रब का दीदार कर रहा हो, उसको तीर निकलने का कैसे पता चल जाए। अल्लाह अकबर। भाई सहाबा किराम को जब कभी जहाँ कहीं जैसी मुश्किल पेश आती, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। नबी सलाम के गुलामों, मेरी तकरीर के 2 मसले, 2 मरहले तय हो गए। पहला मरहला, लोगों ईमान ऐसे लाना है जैसे नबी के सहाबा लाए। सहाबा का ईमान कैसे है? सहाबा का ईमान ऐसे था कि जब मुश्किल पेश आती तो हुजूर की बारगाह में आ जाते। तीसरा और आखिरी मरहला वो ये है कि भाई सहाबा को मुश्किल पेश आती तो हुजूर का दीदार नसीब था, हुजूर की महफिल मुयस्सर थी, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर मसला पेश कर देते थे। हम कैसे करेंगे जी? हम कैसे करेंगे?